جی، جب میرے والد اپنے کلینک پہ تھے وہاں سے میرے والد کو لاپتہ کیا گیا. اب تک میرے والد کو 14 سال ہو رہے ہیں کہ میرے والد کا کوئی پتہ نہیں ہے. آپ کی عمر بھی کم لگ رہی ہے. آپ نے والد کو دیکھا ہوا ہے اپنے؟ نہیں، میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا ہے. میں نے صرف تصویروں میں دیکھا ہے. مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میرے والد کیسے تھے. مجھے دل کرتا ہے کہ میں اپنے والد کو ایک بار دیکھ لوں، ایک بار مل لوں کہ وہ کیسے تھے. اور یہ حقوق یہ حق ہم سے چھین لیا گیا ہے کہ ہم اپنے والد کے بغیر ہی رہیں، ہم اپنے بھائیوں کے بغیر ہی رہیں. یہ بلوچستان کا حال ہے کہ ہم اپنے والد کے ساتھ ہی نہیں رہ سکتے. ہمیں اتنا بھی حق نہیں دیا جاتا کہ ہم اپنے ابو کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ اسکول جائیں، واپس آئیں. جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسکول جاتے ہیں، ان کے والد ان کے لیے آتے ہیں. جب میٹنگز ہوتے ہیں تو ان کے والد ان کے پاس آتے ہیں. ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا اس ٹائم کی میٹنگ کے لیے ہمارے والد نہیں ہوتے. تو اس طرح ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ان مشکلوں سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. آپ لوگوں کو اتنا نہیں ہوتا کہ ہمارے والد کو ہمیں واپس لوٹا دیں. ہم اور کچھ بھی نہیں چاہتے، اپنے والد کو ہی تو چاہتے ہیں. اور کیا چاہتے ہیں؟ صرف اپنے والد کو چاہتے ہیں. یہ اتنی بڑی ڈیمانڈ بھی تو نہیں ہے کہ جسے آپ پورا نہ کر سکیں. ہم کوئٹہ سے اسلام آباد اپنے والد کے لیے آئے تھے. ہم یہاں آئے تھے کہ بڑے اداروں کے جو لوگ ہیں وہ ہماری بات سنیں گے. لیکن یہاں کیا، یہاں ہمارا مذاق اڑایا گیا ہے. یہاں ہمارے سامنے ہمارے مقابل ایک ٹینٹ لگایا گیا ہے جہاں پہ لاؤڈ اسپیکر سے ہماری اذیتوں کا مزید اضافہ کیا جا رہا ہے. راتوں کو یہ جو اسپیکرز ہے یہ بہت تیز ہوتی ہے. ہم راتوں کو نیند نہیں آتی، دن کو تو سکون ہی نہیں ہے. راتوں کو سونے بھی نہیں دیتے ہیں. یہ ان کے لاؤڈ اسپیکرز کی آواز بہت تیز ہوتے ہیں. تو میں جتنے بھی تمام چیف جسٹس ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، تمام سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے والد کو رہا کرے. اب اور نہیں رہ سکتے. 14 سال تو ہم سے ہمارے والد چھین لیا. اب اور کیا چاہیے؟ بس اب ہمارے والد کو ہم بازیاب کریں. اب اور کچھ نہیں چاہتے. یہاں پہ السلام علیکم ناظرین. بلوچ دھرنا اسلام آباد آج ان کے 53 دن ہو چکے ہیں اور یہاں پہ یہ فیملیز اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے یہاں پہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں، کیمپ لگائے بیٹھے ہیں. تو یہاں پہ کچھ بچیاں موجود ہیں جن کے والد یا بھائی پچھلے کئی سالوں سے لاپتہ. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کب لاپتہ ہوئے اور کیا اب کہاں پہ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، آپ اپنا نام بتائیں اور یہ جن کی تصویر آپ نے اٹھائی ہے یہ کون ہے؟ میرا نام صدف امیر ہے. میرے لاپتہ جو ابو ہیں وہ لاپتہ ہو گئے ہیں 4 اگست 2014 سے بلوچستان گوادر کلانت سے. تو جب یہ لاپتہ ہوئے اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ میری عمر شاید 5-6 سال کی تھی. میں اس وقت بہت چھوٹی تھی. تو آپ کو اپنے ابو کی چہرہ یاد ہے؟ نہیں، مجھے صحیح سے ان کا چہرہ بھی یاد نہیں ہے. کہاں سے اٹھایا ہے اور کہاں لے کے گئے کوئی ہے پتہ؟ گھر سے صبح کے ٹائم جب ہم سو رہے تھے، ایف سی والے آئے تھے، وردی کے اندر تھے، ہم سو رہے تھے اس وقت. صبح کے ٹائم تھا، اس وقت آئے تھے، میرے ابو کو لے کے گئے تھے. آپ کے ابو کیا کرتے تھے؟ میرے ابو ڈرائیور تھے، مزدوری کرتے تھے. مزدوری کرتے تھے؟ جی. تو اس کے بعد کسی نے کوئی بتایا ہو کہ آپ کے ابو فلاں جگہ پہ موجود ہیں، زندہ ہیں، کس حالت میں ہیں؟ خبر آئی ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. ہم نے FIR بھی کیا لیکن کچھ بھی پتہ نہیں چلا ہمارے ابو کے بارے میں، کچھ بھی نہیں. تو وہاں پہ بتاتے کیا ہیں؟ کسی سے اگر ادارے والوں سے رابطہ کیا تو کسی نے کچھ بتایا ان کے بارے میں؟ نہیں، کسی نے نہیں بتایا. ہمیں پتہ بھی نہیں ہے وہ ہیں بھی یا نہیں. آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ میں ایک بہن اور ایک بھائی. بھائی چھوٹا ہے بڑا؟ مجھ سے چھوٹا ہے. تو اب کیسے گزارا کر پا رہے ہیں؟ بہت مشکلوں سے گزارا ہو رہا ہے ہمارا. ہم بہت مشکلوں سے اپنا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پورا کر رہے ہیں. بہت مشکل ہو رہی ہے. ہمارا تو ایک سہارا باپ ہی ہوتا ہے ہر کسی کا، لیکن ہمارے پاس نہیں ہے. ہم بہت مشکل سے گزارا کر رہے ہیں. یہاں اسلام آباد اپنے ابو کی بازیابی کے لیے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہمارا ابو بازیاب ہو جائے. تو آپ پڑھ رہے ہیں ابھی؟ جی، پڑھ رہی ہوں. کون سی کلاس میں؟ میٹرک میں. تو ابو کے بغیر آپ نے ساری تعلیم حاصل کر لی ہے، تو ابو کو اب جن کے والد پاس ہوتے ہیں وہ اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، لینے جاتے ہیں، ان بچوں کی خواہشات پوری کرتے ہیں، تو آپ کو یہ کمی محسوس ہوتی ہے تو کیا آپ کے جذبات ہوتے ہیں؟ جی بہت. جب دوسروں کو دیکھتی ہوں اپنے ابو کے ساتھ ہوتے ہیں میں بہت برا فیل کرتی ہوں. بس یہی سوچتی رہتی ہوں کہ آخر کیوں، کہ مجھے حق نہیں ہے اپنے ابو کے ساتھ خوش رہنے کا؟ کیا مجھے اپنے ابو کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے کا حق نہیں ہے؟ ان کا پیار مجھے کیا نہیں ملنا چاہیے؟ بس یہی سوچتی رہتی ہوں کہ آخر کیوں ہمارے ساتھ ایسے ظلم ہو رہا ہے. تو آپ کیا اپیل کریں گے اس وقت اپنے ابو کے لیے؟ بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اب مجھ سے جو ہے انتظار نہیں ہو رہا. میں اب نہیں گزار سکتی اپنی زندگی اپنے ابو کے بغیر. اب مجھے اپنے ابو چاہیے. میں اپنے آگے کی زندگی اپنے ابو کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں. ناظرین، یہ امیر بخش ہیں، ان کی بیٹی کے یہ دکھ بھرے الفاظ کہ جب دوسرے بچوں کو اپنے والد کے ساتھ کہیں بازار میں آتا جاتا دیکھتی ہوں تو میں برداشت نہیں کر پاتی، مجھے بھی میرا ابو چاہیے. تو یہاں پہ اور بھی یہ ایک نہیں، یہاں پہ سینکڑوں ایسی بچیاں، ہزاروں ایسی بچیاں موجود ہیں جو اپنے والد کی بازیابی کے لیے
हर वक्त सिसक रही होती हैं, रो रही होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम फहमीदा बलोच है। तो ये कौन है जिनकी तस्वीर उठाई हुई है? मेरे वालिद है। ये डॉक्टर थे? जी मेरे अबू डॉक्टर है। तो कहाँ से इन्हें उठाया है, कहाँ पे हैं, कोई है पता? जी जब मेरे वालिद अपने क्लिनिक पे थे वहाँ से मेरे वालिद को लापता किया गया। अब तक मेरे वालिद को 14 साल हो रहे हैं कि मेरे वालिद का कोई पता नहीं है। आपकी उम्र भी कम लग रही है, आपने वालिद को देखा हुआ है अपने? नहीं मैंने अपने वालिद को नहीं देखा है, मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखा है। मुझे याद नहीं आ रहा कि मेरे वालिद कैसे थे। मुझे दिल करता है कि मैं अपने वालिद को एक बार देख लूँ, एक बार मिल लूँ कि वो कैसे थे। और ये हकूक़ हमसे छीन लिया गया है कि हम अपने वालिद के बगैर ही रहे, हम अपने भाइयों के बगैर ही रहे। ये बलूचिस्तान का हाल है कि हम अपने वालिद के साथ ही नहीं रह सकते। हमें इतना भी हक नहीं दिया जाता कि हम अपने अब्बू के साथ रहें, उनके साथ स्कूल जाएं, वापस आए। जब हम दूसरों को देखते हैं कि वो स्कूल जाते हैं, उनके वालिद उनके लिए आते हैं। जब मीटिंग्स होते हैं तो उनके वालिद उनके पास आते हैं, हमारे पास कोई नहीं होता उस टाइम की मीटिंग के लिए हमारे वालिद नहीं होते। तो इस तरह हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इन मुश्किलों से हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप लोगों को इतना नहीं होता कि हमारे वालिद को हमें वापस लौटा दें। हम और कुछ भी नहीं चाहते, अपने वालिद को ही तो चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? सिर्फ अपने वालिद को चाहते हैं। ये इतनी बड़ी डिमांड भी तो नहीं है कि जिसे आप पूरा ना कर सके। हम कोयटा से इस्लामाबाद अपने वालिद के लिए आए थे। हम यहाँ आए थे कि बड़े इदारों के जो लोग हैं वो हमारी बात सुनेंगे, लेकिन यहाँ हमारा मजाक उड़ाया गया है। यहाँ हमारे सामने हमारे मध्य मुकाबिल एक टेंट लगाया गया है जहाँ पे लाउड स्पीकर से हमारी अजियतों का मज़ीद इजाफा किया जा रहा है। रातों को ये स्पीकर्स है ये बहुत तेज़ होती है, हमें रातों को नींद नहीं आती, दिन को तो सुकून ही नहीं है, रातों को सोने भी नहीं देते हैं। ये इनके लाउड स्पीकर्स की आवाज़ बहुत तेज़ होते हैं। तो मैं जितने भी तमाम चीफ जस्टिस है, जितने भी लोग हैं, तमाम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वालिद को रिहा करें। अब और नहीं रह सकते। 14 साल तो हमसे हमारे वालिद छीन लिया, अब और क्या चाहिए? बस अब हमारे वालिद को हम बाजियाब करें, अब और कुछ नहीं चाहते। यहाँ पे इतनी शदीद सर्दी में आप रातें गुजार रहे हैं, तो कैसे नींद आती है, कैसे गुजारा कर रही हैं? नींद तो नहीं आती। एक तो सर्दी की वजह से नींद नहीं आती, एक तो जो गाने बजते हैं इनकी वजह से नींद नहीं आती। तो हम गुजारा कर रहे हैं, अपने वालिद के लिए यहाँ आए हैं। अपने वालिद के लिए इतना तो कर सकते हैं, टन बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें। तो कितने बहन भाई हैं आप? हम लोग 7 बहन भाई हैं, मैं छोटी हूँ। आप सबसे छोटी हैं? जी मैं सबसे छोटी कैसा घर का गुजारा चल रहा है अभी? घर में मेरा ना दिल नहीं करता घर जाने को। वहाँ पे जब जाती हूँ अम्मी रो रही होती है, सब रो रहे होते हैं। मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है, उनकी ब्लड प्रेशर हमेशा हाई हो रहा होता है। मेरे अब्बू के जाने के बाद मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है। मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ। घर में जाती हूँ तो सबके रोने की आवाज़, सब रोते हैं, इसी वजह से मेरा दिल नहीं करता कि मैं घर जाऊँ। और गुजारा भी हो रहा है, अल्लाह दे रहा है बस। अब क्या अपील करेंगे आप चीफ जस्टिस साहिबान से या दीगर जितने भी हमारे बहादुर लोग हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक मुसलमान होने के नाते, एक इंसान होने के नाते तो मेरी आवाज़ सुने, मेरे वालिद को मुझे दे दें। और तो मैं कुछ नहीं कह रही, मैं अपने वालिद को चाहती हूँ जो कि खुद पहले से ही मेरे हैं, उन्हीं को तो सिर्फ चाहती हूँ। और आप लोगों की ना कोई पैसे मुझे चाहिए, ना शीशत की ज़िंदगी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सब कुछ मुझसे ले ले, लेकिन मेरे अब्बू को मुझसे जुदा ना करें, उनको बाजियाब किया जाए। नाज़रीन, ये दर्द है कि मैं आपसे कुछ नहीं चाहती। मेरे वालिद जो कि मेरे वालिद हैं, उन्हें वापस लौटा दें, उन्हें मुझे वापस कर दें। मैं अपने वालिद के साथ बाकी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। यहाँ पे एक और बहन भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है जिनकी तस्वीर उठाई हुई है? वालेकुम सलाम जी, ये मेरे भाई का तस्वीर है। मेरे भाई का नाम रहमुद्दीन है। मेरे भाई रहमुद्दीन को 26 अगस्त 2016 को रात के 2 बजे FC वालों ने हमारे घर से लापता किया, जो कि अभी मेरे भाई को 8 साल हुए हैं। अभी तक मेरे भाई लापता है। अभी तक कोई पता नहीं है? नहीं, हम अपने इलाके के इसने अपनी नौकरी के लिए कागजात जो है जमा किए थे, सिर्फ इसके दौड़ बचे थे, जो कि हमारे पाकिस्तान के सरकार ने उसे नहीं छोड़ा। कितना पढ़े हुए थे? 2nd ईयर तक। सही है। तो आप कितने बहन भाई हैं? हम 8। तो कभी पता चला है ये कहाँ पे हैं, किस हाल में हैं? इसको जो है ना FC वालों ने उठाया, उसका तो आप लोगों को पता है कि वो कभी मानते नहीं कि हमने इनको उठाया है। लेकिन मेरे भाई को हमारी आंखों के सामने रात के 2 बजे FC वालों ने खुद ही आके हमारे घर से लापता किया। मैं खुद ही उसी स्कूल में पढ़ती थी, FC स्कूल में मैं खुद पढ़ती थी। मैं उस कर्नल को पहचानती, जो सिक्योरिटी थे उनको भी मैं पहचानती। मैं खुद ही एक गवाह हूँ उनके लिए। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमने नहीं उठाया। मैं खुद इस बात का पक्का गवाह हूँ कि उन लोगों ने उठाया है। मेरी भाई को 8 साल हुई हैं, जिसकी वजह से मेरी अब्बू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैं इनसे यही कहती हूँ कि अगर वो किसी के बेटे हैं, अगर वो किसी के भाई हैं, तो प्लीज़ हमारे भाइयों को छोड़ दें। हमारे अब्बू को, ऐसे हमारी फैमिलीज़ को इस अजियत में ना डालें। इस्लामाबाद में मैं अकेली एक लड़की खारान से आई हूँ। शायद आप लोगों को पता चले, या आप
लोग पता करें। खारा यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन मैं यहाँ पर इस मजबूरी से आई हूँ कि मेरे भाई को बाजियाब किया जाए, क्योंकि मेरे घर की सारी उम्मीदें जो हैं इसी बात से जुड़े हैं। शायद आप इस्लामाबाद जाओ कुछ हो जाए, क्योंकि क्वेटा, कराची, सब इलाके हमने जाकर देख ली। मेरी हालत इतनी ख़राब है कि मैं अब देख रहे हैं कि मैं आपके सामने बात नहीं कर सकती, क्योंकि इस रियासत ने हमें इस हालत में छोड़ा है। इस रियासत ने इस कदर हमें छोड़ा है कि मैं 16 साल की उम्र में मुझे दमे की बीमारी है। अभी 20 तारीख को मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन मेरे हाथ में इस टाइम मुझे अपनी क्लास में होनी चाहिए। इस टाइम मेरे हाथ में सिर्फ मेरी काफ़ियाँ होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। मेरे हाथ में सिर्फ मेरे भाई का तस्वीर है। मुझे मंजूर है, अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते तो डाल ले, मुझे बेशक मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मुझे मेरे भाई दे दे, क्योंकि मैं अपने घर की हालत इस तरह नहीं देख सकती हूँ, जिस तरह मेरी अम्मी अब्बू, जिस तरह मेरे भाई बहन गुजार रहे हैं। मैं अपील करती हूँ, बार बार अपील करती हूँ, मैं दरख्वास्त करती हूँ, मैं हाथ जोड़कर उनसे कहूँगी मेरे भाई मुझे लौटा दे। इस तरह मेरी फैमिली को अज़ियत में ना डालें। शायद आप लोगों थोड़ी सी भी इंसानियत थोड़ी सी रहम है, तो मैं आप लोगों से अपील करती हूँ। आप लोग इतने बड़े धर्म इस्लामाबाद आए हैं, अभी तक कोई हमारे पास नहीं आया है। इतनी पत्थर दिल ना बने आप लोग कि किसी बहन की, किसी अब्बू की, किसी माँ की आप लोग फरियाद नहीं सुन रहे। आप लोगों को लग रहा है हम मजाक करें। हमें कहते हैं आप लोग सर्दी में बैठे, यार हमारे दिल में जो जलन है उसको कौन बुझाएगा, उसका हाल कौन पूछेगा। इस सर्दी का तो हर कोई आके पूछता है। आप लोग को कंबल दे दे, आप लोग को खाने के लिए कुछ दे दे। हमें खाने से आप लोग के कंबल से कुछ नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमारे प्यारे दे दे, वो सब कुछ हमारे लिए। ईदें होती हैं, उनके कपड़े रखे हुए हैं, हम सिर्फ उनके कपड़ों से बातें करते हैं। आप भी बहन की भाई हो, आपको कैसे फील होगा जब आपकी बहन इस तरह रोड में हो, इस तरह ऐसे भाइयों के सामने सिर्फ बैठी हो। रात को हमें नींद नहीं आती है, हम यहाँ पर बैठे हैं। हमें कहते हैं कि आप लोग ढोंग करते हो, नोटंकी करते, रोते हो। अरे हमारे दिल से पूछो क्या गुजर रहा है हमारे ऊपर, हम किस हालत में हैं। वहाँ से यहाँ तक पहुँचे, अभी तक मेरे सारे दोस्त कहते हैं थोड़ी सी आकमीन हंस लो। मैं कहती हूँ हंसी कहाँ से आएगी जब भाई की एक तस्वीर मेरे हाथ में और कुछ नहीं है, उसकी याद भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि उस टाइम मैं सिर्फ 9 साल की थी। मुझे इस चीज़ की अफसोस है। मेरे सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि हमारे भाइयों ने ऐसा किया वैसा किया, हमें याद आ रहा है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इस पाकिस्तान की सरकार की वजह से उसने मेरे भाई को 9 साल की उम्र में मुझसे जुदा किया, क्योंकि मैंने भाई का प्यार नहीं देखा। इस वजह से मैं अपील करती हूँ सबसे कि मेरे भाई को बाजियाब करें, और जितने लापता अफराद हैं उन सबको बाजियाब करें, हमें और अजियत में ना डालें। नाज़रीन, ये एक बहन के जज्बात अपने भाई के लिए जो पिछले 8 साल से अपनी बहन से जुदा है, नहीं पता ज़िंदा है, किस हालत में है, कहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे ये एक नहीं, इस तरह की ये सैकड़ों हज़ारों कहानियाँ हैं कि जिनके बच्चे, जिनके भाई, जिनके वालिद पिछले कई सालों से उनसे जुदा कर दिए गए हैं। और ये जबरी गुमशुदगी पाकिस्तान के बलोचों के हिस्से में आ रही है, और ये इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई तशवीशनाक है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे अपने प्यारों की तस्वीरें उठाए यहाँ पे खड़े हैं, और इस उम्मीद के साथ, इस आस के साथ इस्लामाबाद पहुँचे हैं कि यहाँ पे हमारी आवाज़ सुनी जाएगी और हमारे प्यारे हमें वापस किए जाएंगे। पिछले 53 दिन से यहाँ पे सर्दी, बारिश, ठंड, भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन मुतालबा सिर्फ यही है कि हमारे प्यारे जिन्हें अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, हमारे बेटे या हमारे वालिद या हमारे कोई भी तल्लक, कोई भी रिश्ता है, तो वो अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ है, उसे आप कैसे अलहदा कर सकते हैं। ये आवाज़ तमाम देखने वाले दोस्तों से भी अपील है कि इनकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं, और तमाम जितने भी हमारे मोतबर हलके हैं उन तक आवाज़ उठाएं, और इनकी बाजियाबी के लिए अपना किरदार अदा करें।